Hello. Today we're going to talk about gender references. Okay, references to males and females. English does not have many, problems of grammatical gender. हम he कहाँ पर use करें, she कहाँ पर use करें. We have only these two pronouns, he and she. We use he with males and she with females. Okay. एंड इट विद थिंग्स के साथ हम इट का यूज करते हैं. लेकिन आपने बहुत बार देखा होगा कि सम पीपल यूज these pronouns with names of countries. Some other people use these pronouns with names of ships, cars, motorbikes, animals, and all that. Now the question is whether it is is it right to use these pronouns with animals or objects like cars, ships, or not? ये question है हमारे पास. Listen, the main answer to this question is, as I said at the very beginning of this video, that English does not have many problems of grammatical gender. Okay, with people we use he or she. Okay, with things we use it. Okay, now the question is, what about objects? What about animals? What about certain other things? As far as animals are concerned, अगर हम animals की बात करेंगे तो generally it is sad that, or we can say that some of the people they do use these pronouns like he or she with animals, especially when they are thought of having personality, when they are thought of having intelligence, when they are thought of having feelings. And this generally happens with pets we have in our homes, like cats, like dogs, like cows, like horses. इन सब animals के साथ हम लगा सकते हैं. लेकिन अगर मैंने जैसे कहा कि अगर ऐसा समझा जाता है that these animals have feelings or personality or intelligence. Okay, now for example I say I had a cat, she was very beautiful. कुछ लोग ऐसे यूज करते हैं. क्वेश्चन ये है कि क्या ये सही है या गलत है. दिस इज टोटली करेक्ट, दिस इज कंप्लीटली करेक्ट. इसमें कोई शक नहीं है कि आप कोई शक व शुबात इसमें नहीं है that it can be incorrect. No, this is wholly and solely completely correct. ठीक है, इनको हम लगा सकते हैं. कैट्स आपके घर में होते हैं, डॉग्स घर में होते हैं, हॉर्सेस घर में होते हैं, काउस वगैरह घर में होते हैं. तो मैंने जैसे कहा, जब अगर ऐसा समझा जाता है कि हमारे पास ऐसे एनिमल्स हैं जिनके पास एक पर्सनैलिटी है, इंटेलिजेंस शो करते हैं वो, या फीलिंग्स होती हैं, तो पेट्स के साथ ऐसा जनरली होता है. ठीक है, उनमें फीलिंग्स होती हैं, ये इस किस्म की चीजें होती हैं. सो वी कैन से, जैसे मैंने कहा, दैट आई हैड अ कैट, शी वॉज वेरी ब्यूटिफुल. इसी तरह से मैं कह सकता हूं आई हैड अ रैबिट, आई हैड अ रैबिट, हिज नेम वॉज जैम. I had a rabbit, his name was Jam. तो जैसे आप he या she यूज कर सकते हो, इसी तरह से जो ये बाकी प्रोनाउंस है लाइक his, her, him, ये भी आप यूज कर सकते हैं. ओके, इसी तरह से हम कहते हैं I had a cow, I had a cow, she was brown in color, she was brown in color. तो she मैंने यूज किया. इसके साथ लोग ऐसा करते हैं, इंग्लिश स्पीकर्स जो है, they do use such pronouns with these sort of animals. तो एक चीज मैं आपको बताऊं कि ऐसा नहीं है, it is not like that कि language is learned from books, or language it is invented from books, और इट इज लर्न फ्रॉम बुक्स. नहीं, ऐसा नहीं है कि किताबों में जो लिखा है फिर वही बोलना है. नो, इट इज नॉट लाइक दैट. द थिंग इज कि जैसा लोग बोलते हैं, जैसी अंग्रेजी लोग बोलते हैं, इंग्लिश बोलने वाले जिनकी ये जबान है, किताबों में वही चीज लिखी जाती है. ओके, अगर कुछ लोग बोलते हैं, इंग्लिश स्पीकर्स अगर कुछ ही या शी जो है एनिमल्स के साथ यूज करते हैं,
वी हैव नो ऑब्जेक्शन एंड यू कैन नॉट ऑब्जेक्ट इट, आप ऑब्जेक्ट नहीं कर सकते हैं। और किताबों ने लिखा है, बुक्स में ये चीजें लिखी हुई हैं कि हाँ आप ये यूज कर सकते हैं, बिकॉज रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन, रीजन क्या है, बिकॉज पीपल यूज इट, जिनकी ये जबान है वो यूज करते हैं, इसलिए देयर इज नो प्रॉब्लम इन यूजिंग these pronouns with animals. Okay. Now, उसके बाद क्वेश्चन है objects. Some people use, she, especially with their cars, with their motorbikes, with their boats, with ships. इनके साथ भी she, especially she. ठीक है, अगर आपके घर में कैट है, डॉग है, if you know the gender of your pet, you can use he or she accordingly. आप he or she accordingly use कर सकते हैं। But in case of objects which have no gender, कोई जेंडर नहीं होता है, like cars हैं, मोटर बाइक्स हैं, कुछ लोग, कुछ इंग्लिश स्पीकर्स यूज करते हैं इन प्रोनाउंस को, he और she को इनके साथ। So we can use he और she नहीं, बल्कि सिर्फ she, कार्स के साथ, मोटर बाइक्स के साथ, शिप्स के साथ, बोट्स के साथ शी का यूज किया जाता है। जो इंग्लिश स्पीकर्स हैं, जो नेटिव स्पीकर्स हैं, वो उनको यूज करते हैं। ठीक है, शी को यूज करते हैं। लाइक वी कैन से आई हैड अ कार, या हम कह सकते हैं आई परचेज्ड अ कार, शी इज वेरी ब्यूटीफुल, या शी रन्स वेरी ब्यूटीफुली। ओके, शी रन्स वेरी फास्ट। आई हैव अ कार, I have a car, she runs very fast, she runs very beautifully. तो she का यूज करते हैं लोग। मोटर बाइक्स के साथ she का यूज करते हैं, शिप्स के साथ she का यूज करते हैं। जैसे हम कह सकते हैं I saw a ship, she is very big. I saw a ship, she is very big. I saw a boat, she is very small. She, तो she का यूज आप boats, names of boats, ships, cars and motorbikes के साथ यूज कर सकते हैं। Okay. Now in case of countries, in modern English, countries के साथ आप she, लोग जो हैं she यूज करते हैं, and you can use she with names of countries also. उनके साथ भी आप कर सकते हैं। Suppose आप कह सकते हैं India is a country, she is the largest democracy in the world. She is the largest डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। तो आप शी का यूज कर सकते हैं कंट्री के साथ। ओके, नाउ तो इसी तरह से बाकी प्रोनाउंस जो है, जैसे मोस्टली हम हु जो है, WHO, हु, ये मोस्टली हम लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इन्हीं पेट्स के साथ, इन्हीं एनिमल्स के साथ आप हु का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जैसे मैं कहता हूं आई हैव अ डॉग हु इज वेरी लॉयल, हु इज वेरी लॉयल। तो इस तरह से आप ही, शी, who, him, his, her, ये आप यूज कर सकते हैं। ओके, लेकिन नेम्स ऑफ कार्स, कंट्रीज, मोटर बाइक्स, शिप्स, बोट्स, इनके साथ सिर्फ शी का यूज आप कर सकते हैं। देन वी हैव, हमारे पास एक और इशू है, एक और प्रॉब्लम है। जैसे अगर आपके पास कभी कभी ऐसा होता है कि वट एवर यू आर टॉकिंग अबाउट, आप किस चीज के बारे में बात करते हैं, किसी पर्सन के बारे में बात करते हैं, व्हेन यू डू नॉट नो द जेंडर ऑफ पर्सन। ओके, सपोज आप एक टीचर हैं और आप अपनी क्लासरूम में हैं, आप पढ़ा रहे हैं। ओके, suddenly you feel that there is some students are whispering, they are murmuring in the class, they are not interested in the class, and suddenly you say that if a student is not interested in the class, he can go outside, he can go outside. ट्रेडिशनली हम ऐसा करते थे, जब हमें जेंडर पता नहीं होता था तो ही का यूज करते थे, ही का यूज करते थे, HE, ही। ठीक है, फिर चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, मास्कुलिन हो या फेमिनिन हो, हम ही का ही यूज करते थे। जैसे मैं कहता हूं इफ अ पर्सन वांट्स टू कम इन, ही कैन कम इन। अगर कोई अंदर आ सकता है, मेरी ऑडियंस जो है मेल्स भी है, फीमेल्स भी है, और मैं कहता हूं इफ अ पर्सन वांट्स टू गो आउट, ही कैन गो आउट, ही कैन गो आउट, जबकि फीमेल्स भी है वहां पर। तो ट्रेडिशनली ऐसा हम यूज करते थे, जब जेंडर भी पता नहीं होता था तो हम ही का ही यूज करते थे, हिज का यूज करते थे। ओके, बट दिस यूजेज इज इट इज कंसिडर्ड एज सेक्सिस्ट। ठीक है, इसको सेक्सिस्ट समझा जाता है, तो इसको अवॉइड किया जाने लगा है। ठीक है, इट इज अवॉइडेड। नाउ व्हाट डू वी से,
हाउ डू वी यूज ही और शी। जैसे मैं कहता हूं, इफ अ पर्सन वॉन्ट्स टू गो आउट, he or she can go out. He or she can go outside. If a person wants to talk, he or she can talk. कोई बोलना चाहता है वो बोल सकता है। अगर आपकी ऑडियंस में से मेल्स भी हैं, फीमेल्स भी हैं, और आप कहते हैं इफ अ पर्सन, ना पर्सन कैन बी बोथ मेल एज वेल एज फीमेल, ओके, एंड यू से इफ अ पर्सन वांट्स टू स्पीक, he or she can speak. ये इस ऐसे इस्तेमाल किया जाता है। बट देयर इज अनदर थिंग, और रिटन में अगर आप रिटन इंग्लिश की बात करते हैं तो ही और शी की जगह आप ही ओब्लिक शी का भी यूज कर सकते हैं। देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट दैट। बट एक और इशू है हमारे पास, एक और यूजेज है हमारे पास, एंड दैट इज वेरी ब्यूटिफुल। ओके, इसी केस में हम ही और शी, ही ओब्लिक शी, इसके बदले में हमारे पास एक और ऑप्शन है और उसको सदियों से इस्तेमाल किया जाता है, एंड इट इज व्हाट, इट इज द प्रोनाउन THEY, दे। हम ऐसे केस में दे का यूज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूं if a person wants to talk, इफ, या ऐसे वर्ड्स, चाहे वो पर्सन, जैसे पर्सन है, एनीबडी है, जो इनडेफिनिट वर्ड्स हैं, पर्सन, एनीबडी, समबडी, ठीक है, जो हम किसी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मेल्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फीमेल्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम कहते हैं इफ somebody wants to go outside, if somebody wants to go outside, they can go. Somebody is singular, they is plural, but they can be used as with singular here in this case. यहां पर हम यूज कर सकते हैं, और सदियों से इसको इस्तेमाल किया जा रहा है, और नेटिव्स जो है, नेटिव स्पीकर जो हैं, वो यूज करते हैं, और अगर वो यूज करते हैं हम भी यूज कर सकते हैं। और इस पर स्पेशली इस हाउ दे कैन बी यूज एज अ सिंगुलर, इस पर मेरी एक और वीडियो है, आप प्लेलिस्ट में जाके या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसको आप देख सकते हैं, उसको आप चेक कर सकते हैं। इस पर अलग वीडियो मैंने बनाई है, तो आप इनको देख सकते हैं। तो यू कैन यूज दे हियर, इस केस में आप दे का यूज कर सकते हैं। इफ somebody wants to take admission in this institution, they can take. If a person wants to meet me, they can come. ठीक है, पर्सन सिंगुलर है, somebody सिंगुलर है, anybody सिंगुलर है, anyone सिंगुलर है। ओके, इनके साथ भी आप इस ऐसे, जैसे मैंने यूज किया, दे का यूज कर सकते हैं, ओके, या them का यूज कर सकते हैं। ओके, देयर इज नथिंग इनकरेक्ट। इसको समझा जाता है दैट इट इज इनकरेक्ट, बट इट इज नॉट इनकरेक्ट। मैंने पहले ही कहा कि किताबों से लैंग्वेज जन्म नहीं लेती हैं, लैंग्वेज बोली जाती है, वहां से उठा के किताबों में लिखी जाती है कि ऐसे लैंग्वेज बोली जाती है जैसे लोग बोलते हैं। सो इट वॉज ऑल अबाउट दीज प्रोनाउंस, दीज जेंडर रेफरेंसेस। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरा चैनल, डू सब्सक्राइब, और मेरी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यू कैन कमेंट, आप कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो, यू कैन कमेंट। थैंक यू वेरी मच।